Hello and welcome to another episode of Daily Crypto News, your number one source for all the latest developments in Web3. If you're coming here for the first time, then do like this video. And if you are coming for the second time or perhaps the third time, then subscribe the channel, bro. शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज के साथ. Opera web browser will now support Bitcoin, Polygon and a lot of other cryptocurrencies. And इस move के बाद Opera will be the first web browser in the world which is going to support multiple blockchain networks. This is a fantastic news because I think a lot of people who are just now transitioning into the whole Web3 space, इनके लिए थोड़ा सा process थोड़ा सा और streamline हो जाएगा, थोड़ा सा और easy हो जाएगा. तो शुरुआत हमने करी आज की एक बेहतरीन न्यूज के साथ. अब आगे बढ़ते हैं. WeChat, which is the largest social media giant of China, has now banned some accounts on account of crypto speculation. चाइना के क्रिप्टो को लेकर स्टांस बहुत क्लियर है. लास्ट ईयर उन्होंने क्रिप्टो माइनिंग को बैन किया था एक्सक्लूसिवली, एंड दिस साल उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए हैं, which makes crypto trading and crypto speculation a very illegal activity. And I think अब उनका latest crackdown on NFTs is just another step to reinsure that people in China, they do not have any access to cryptocurrencies or NFT tokens or any part of all this Web3 space. So sad for them. पहले वो Facebook नहीं यूज कर पा रहे थे, अब भी नई चीजें आ रही हैं उनके लिए. तो चाइना वालों क्या ही कर सकते हो तुम. And another bullish news, Samsung and Nifty Gateway, they have partnered together to create the world's first ever NFT compatible smart television. Yes, सबसे पहला ऑर्डर इसी घर में आएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा whenever I buy that TV. Of course not, man. अभी LED ले लें पहले. Let's start with that. Small steps. And anyway, but this is fantastic news because I think again mainstream adoption of NFTs, it's gonna get a lot of people more interested in this technology and it make process a little easier for them. अभी क्या हो रहा है कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, लोग थोड़े से एप्रीहेंसिव हैं, बट अगर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में आप इसको मर्ज कर देंगे तो थोड़ा सा एडॉप्शन और इजी हो जाता है. एंड हम जैसे लोग जो इसको प्रमोट कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को, Web3 को, तो इनका काम थोड़ा सा और आसान हो जाता है बिकॉज लोगों को बार बार नहीं बोलना पड़ता, ब्रो करो ना इन्वेस्ट यार, मतलब खोलो ना अपना मेटामास्क का वॉलेट, खरीदो ना थोड़ी NFT. So yeah, that's about it. Number 4, थोड़ी सी मनूस न्यूज की तरफ बढ़ते हैं. सुशील मोदी के बाद अब IMF ने भी बोला है कि यार इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इट इज एट ग्रेटर रिस्क फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज. अब मतलब सुशील मोदी जी बोले थे 50% टैक्स लगा, उन्होंने बोला है, IMF बोल रही है कि आप क्या कर रहे हो यार तुम लोग, पहले अपने रुपये की वैल्यू को तो थोड़ा स्टेबलाइज करिए, आप अपनी करेंसी को तो स्ट्रॉन्ग करिए. एंड साइबर अटैक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मतलब उसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. जो अभी कल परसों में सबसे बड़ा क्रिप्टो इंडस्ट्री का हैक हुआ था, साइबर अटैक हुआ था, उसके बारे में हम बात करेंगे. बट अब वो बोल रहे हैं कि इंडिया, यू डू नॉट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक प्लेस फॉर दिस क्रिप्टो करेंसी. सो पहले जस्ट बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन विल टॉक अबाउट रेगुलेटिंग इट. सो दैट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज, बट आई थिंक सुशील मोदी विल बी अ हैप्पी गाय टुडे. एंड आगे बढ़ते हैं. शिबा इनू ने अपना खुद का मेटावर्स बना दिया है. हाँ, इट इज नॉट जस्ट अ मीम करेंसी नाउ, इट इज apparently a metaverse currency now. And the creators have clearly mentioned that all these plots of land will be put up on sale and you can buy it from the Ethereum token and not Shiba Inu currency because they do not want people to, dump their Shiba Inu and that will bring the value of the currency down. So I don't know how will that work out for them. But yeah, good news for them. And I think the name of this metaverse project will be known as Shibarium, Shiba's own metaverse. And yes, good news for NFT holders. Another great news. It is finally official now. OpenSea is going to add support of Solana ecosystem on their platform. So which is another great news. इस news के बाद थोड़ा सा Solana में pump आया था. And Solana की जो existing NFTs थी, they also saw a little bit of a spike. So I think this is fantastic news. Yeah, I think OpenSea now has support of Polygon, Clayton, now the biggest one Solana. So this is good for the project. Let's see what all new exciting projects come on Solana now on OpenSea. Now let's address the elephant in the room. Yes, everybody has been talking about it. The famous Ronin network hack, जिसमें $650 million का एक झटका लगा क्रिप्टो की इंडस्ट्री को. एंड देखो अब ये हैक हो गया है, बट अब आगे देखते हैं इस हैक के बाद ये जो हैकर है, हाउ विल ही यूज द फंड्स. बिकॉज सी, ब्लॉकचेन की जो सबसे बेहतरीन चीज है वो ये है कि इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट. तो जो उसका पैसा है, जो उसकी मूवमेंट है, जो उसकी एक्टिविटी है, ये सब एक पब्लिक डोमेन में है. एवरीबडी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग विद दैट मनी. तो जो एग्जिस्टिंग अमाउंट था, दैट इज 1,73,600 इथेरियम उनके पास थे एंड आई थिंक 25 मिलियन ऑफ USDC. उसमें से 5,000 इथेरियम वो उसको बेच चुका है. एंड जो एग्जिस्टिंग अमाउंट बचा है वो बेचना, आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द हैकर नाउ, बिकॉज जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन्होंने वो उसका वॉलेट एड्रेस को ब्लैकलिस्ट कर दिया है.
एंड ये पैसा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. हाँ, लोग देखते रहेंगे कि भाई इसके पास इतना पैसा है, बट वो पैसा किस काम का जो आपके काम ना आ सके. बट हाँ, दिस इज अ मैसेज दैट एज एन इंडस्ट्री दिस नीड्स सम टाइटर रेगुलेशन. थोड़ा साइबर सिक्योरिटी के बारे में दिस ब्लॉकचेन विल हैव टू थिंक ओवर अगेन. एंड जो स्पेशली जो साइड चेन्स हैं, दीज आर वेरी वनरेबल टू सच साइबर अटैक्स. तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. एंड फिर से अब यूएस की एक वार्निंग आई है, जितनी भी यूएस की एक्सचेंजेस हैं, कि अगर आपने रशिया की मदद करी क्रिप्टो को लेकर तो हमसे बुरा कोई नहीं होएगा. मतलब यार, यूएस को मैं पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूं यार, नॉट जस्ट इन क्रिप्टो स्पेस, धमकियां नहीं जा रहे हैं यार, सैंक्शन लगा देंगे वो. अबे कुछ करो यार, देखो केजरीवाल को, सुनो अबे. And another great news for Apple users. Now you can use Apple Pay to easily buy cryptos on MetaMask wallet. Of course, Apple does not support crypto payments directly, but इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि Apple का जो वायर ट्रांसफर है, आप उसके थ्रू क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं, MetaMask वॉलेट में डाल सकते हैं. तो आई थिंक इट इज अ गुड न्यूज ओनली. एंड आज का रोडी सल्यूट अगर किसी को जाता है तो वह है प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने पार्लियामेंट में बहुत बोल्ड तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री को एंड सबको ये चीज बोली कि यार, अगर आप क्रिप्टो को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं तो उसको प्लीज रेगुलेट क्यों कर रहे हैं. अब इस पार्लियामेंट की हीटेड आर्ग्यूमेंट का थोड़ा सा स्निपेट हम अपनी स्क्रीन पर प्ले करेंगे एज अ टोकन ऑफ आवर ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन फॉर रेजिंग द कंसर्न्स ऑफ ऑल द क्रिप्टो होल्डर्स फ्रॉम इंडिया. तो प्लीज आप भी देखिए अब थोड़ा सा. आज हमारा देश एकमात्र देश होगा पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी बिल लाने से पहले क्रिप्टो टैक्स लगा देता है, और एकमात्र वित्त मंत्री होंगी इस देश में जो कहती हैं पता नहीं लीगल है या इलीगल है, और वो मैं अभी नहीं बता सकती हूं. जब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आएगा तब हम बात करेंगे, पर हाँ, हम उस पर टैक्स जरूर लगाएंगे. And the last on the news today, a good news for all the Batman lovers and DC fans. Warner Bros, DC fans and Palm Studio, उन्होंने collaborate किया है and they are coming up with exclusive Batman themed NFTs. They'll be known as Batcowl NFT collection. इनका circulation में number होगा 200,000 and I think they'll be priced roughly around $300. So company का सीधा profit 16 million. Anyway, that's all the top news from today. If you like such content, you gotta like and follow, and please subscribe to this channel, and I will see you in the next video.